How are we today? Good, bad, okay. Happy? Happy would go? Happy? So कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा ही लगता है. स्टार्टिंग है ना. अकाउंट्स पढ़ लिया आज सुबह सुबह? रिफ्रेश हो गए अच्छे से? सो अब रेडी है इंग्लिश के लिए? हाँ, इंग्लिश तो इजी है इन कंपैरिजन टू अकाउंट्स. मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रेन नहीं है. दैट इज व्हाट आई थिंक. यस. So let's start. Do we remember what did we study yesterday? So what did we study yesterday? Unseen comprehension or unseen passage. So we are going to continue with the same. So eco-friendly module निकाल लो बाहर, green color वाला. Eco-friendly module out. हाँ. So eco-friendly module का हमने passage number 1 किया था. Remember? That was subjective in nature. 2 questions थे. Now we are going to continue with passage number 2. Right? This is comparatively a longer passage. जो हमने passage 1 में किया था उससे comparison में ये थोड़ा सा longer है. So now the challenge कि अब हम एक बड़े वाले passage को skim through करके read कर सकते हैं या नहीं. This is page number 2 and 3 module का. So if we are we there? Okay. So open that page and start skimming. I think I can see many new faces today. Maybe some of you were not present. Is that so? अच्छा, yes है. So meanwhile जब जो कल आए थे वो skim through कर रहे हैं. I would like to brief you कि skimming क्या होती है. Skimming होता है in between read करना. पूरा passage ना read करके in between read करना, कुछ lines skip कर करके read करना. And जो भी हम read कर रहे हैं उसे underline करते रहना. That is skimming. जो आज आए हैं उनके लिए है ये. Skimming is to leave few lines in between and then read. Maybe हमने line 1 read की, then 3, then 7, ऐसे बीच बीच से read की. Why? The purpose is so that we get a rough idea about the passage. And whatever we are reading, we have to read it thoroughly and underline it. So even I'll do the same here. कोई doubt है so you can ask n number of times पूछ सकते हैं. It's okay if we are taking time, that's all right. Starting में लगता है.
Are we done? कोई बात नहीं, continue if we haven't. It's all right. I feel like some of us are done. Yes? Okay, that's good. So can you tell me what this passage is talking about? अगर हमने चीटिंग नहीं की और सिर्फ स्किम थ्रू किया है तभी बताना. पूरा पैसेज तो पढ़ के नहीं बैठे हो? नहीं ना? So who's going to tell what this passage is talking about? A line or two would go. Can you speak the same over mic? Ma'am, it's about the transition from an old phase to a new phase. Like earlier, we used to buy appliances that took delivery time and like buying time. But nowadays, it's pretty much easier. Like online, we can buy anything, same day delivery and installation. It's about transition phase. Okay. Anyone else? Okay. Ma'am, the change in phase that to offline to online, like we used to buy products offline, but now we are buying it online, and we have been given new services, warehousing and like many other services provided by the e-retailers. Okay. Coming to you also. Ma'am, it's basically talking about e-commerce, ma'am, and it's talking about, ma'am, from two point of views, ma'am, from a consumer's point of view and from a manufacturer's point of view. Okay. So both viewpoints are being shared. यहाँ पे आगे. And the passage is talking about the shift in the services purchase from the traditional way to online. And the next, it is talking about the best features offered by the online sales services. Okay. Yes. Relatively, it is talking about this only. So this idea we could gather after skimming through the passage. We were not required to read the entire passage to get this idea. Yes? Yes? So now can we move to question answers and see? So this is in particular, all questions are in MCQ format. So maybe your question in the paper, a mix of both subjective and objective, or maybe entirely objective, or maybe in entirety it is going to be subjective. So we don't know, but we are going to prepare, with all sorts, like whatever way it is going to come, we'll be able to deal with the same. So the very first question, it says, Sushma Ghosh says, I was pleasantly surprised and she was surprised, and we have been given 4 options. So can we just raise our fingers, like which option do we think? Is it 1, 2, 3 or 4? 4. How do you know the answer so quickly? Underline kiya hai. So fourth answer, fourth option, that Sushma Ghosh says, I was pleasantly surprised and she was surprised by the quick delivery and instant installation of the washing machine. ठीक है, ये underline किया था. So it was, if I'm not mistaken, in the very first para, where the experience of this consumer is being given, where she's talking about that how, from traditional setup to this new phase of e-commerce she's enjoying, and what all perks, like what all benefits she has seen if she has purchased the same thing via online services. Yes, online mode. And she says it was not only delivered in a day but also installed immediately. Next, coming to the next question. Some manufacturers have even teamed up with e-retailers too. So I have
mixed responses. Some of you are saying 2, but there are few hands which were saying 3 earlier, but now even they are saying 2. And those who have not raised their hands, they have not found the answer. Hands down, I got it, it's 2. Those who have not raised their hands, is it that they have not found the answer? Or is it that they have not tried? See, you need to tell me, then only I'll be able to help you. That what was it? Is it that you didn't get the time, or you couldn't relate, you couldn't find? What? बताओ क्या हुआ? मिला नहीं या ढूंढा नहीं? एक तो रीजन होगा, या तो मिला ही नहीं, ढूंढा था, या ढूंढा ही नहीं, कोई और तो ढूंढ ही रहा है हमारे लिए. बताओ, बोलो, क्या रीजन है? Those who have not raised their hand, ढूंढा नहीं या मिला नहीं? अरे बताओ. देखो, मैं माइक उतारूंगी, वहां आऊंगी, तुमसे बात करूंगी, ऐसे तो होगा नहीं, तो इसलिए ऐसे ही बता दो, डरो मत. Shall I take it कि मिला नहीं? मिल गया था, तो फिर हाथ नहीं उठाया. Who would take this kind of burden? कौन करे सुबह सुबह? ये था क्या रीजन? Okay, I'll take it like this. ये था रीजन कि सुबह सुबह कौन हाथ उठाएगा, but next time I would appreciate if all of you would participate, right? So you are saying second option, that some manufacturers have even teamed up with e-retailers to have special sale offers on large appliances like TVs with specific features. And this, was it something that you people have underlined, or was it something that was non-underlined part? How come? पहले से पता था. So this is something in this para number 3, right? On page number 3, second para, and in totality it is the third para. Yes, some manufacturers have even teamed up with e-retailers, the very first line, to offer TVs, refrigerators and washing machines with specific features. This helps bring down prices. Okay, third question. One of the top 3 earners of ABC is, okay, I can see 3. I like that hand over here, somebody did like this. ऐसे करके, ऐसे. I like that hand. बहुत अलग से specific था, सबका 3 ऐसे था, वो ऐसे था. So अलग से मुझे नजर आया वो 3. हाँ, 3 is the answer. So one of the top 3 earners of ABC is large appliances. Okay. So where can I find this? कहाँ है ये passage में? Which para? Third paragraph. Okay, page number 3, which para? Tell me like this. Second para. Third line. Fourth line. From being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners for ABC. Yes? Okay. ये भी underlined है. तुम लोगों ने कॉपी किया मुझे? जो मैंने अंडरलाइन किया वो तुमने किया? Okay. The 2 factors that are promoting sales of e-retailers are, okay, यहाँ mixed responses है, ये अच्छा है. Okay, so I have 1, I have 2, I have 3 also as an answer. 4 भी है क्या? तो सारे आंसर. So 1 is something that is being said by most of you. 2 is also there, 3 is also there, 4th भी है. अच्छा. So 1, 2 and 3.
अच्छा मुझे सब बता दो कि ये आंसर मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। 1 वाले बता दें मुझे कौन से पैरा में मिलने वाला है। 3rd पैरा में मिलेगा। पेज नंबर 3 सेकंड पैरा, second last line, exchange offers. Exchange offers and financing options provided by e-retailers have also pushed sales. Okay, so this ये 1 ऑप्शन वाले लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला बता दो कहाँ है आंसर। बी कॉन्फिडेंट ना, तुम्हारा आंसर भी तो ठीक हो सकता है। फर्स्ट पैरा में चले जाओ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट पैरा पे ओके, विच लाइन? द वेरी फर्स्ट पैरा एज इन पैसेज का फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन। ऑनलाइन सेल्स ऑफ लार्ज appliances have boomed in the past 2 years as e-retailers have addressed buyers delivery and installation concerns. अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन वाले, थर्ड ऑप्शन वाले बताओ, थर्ड ऑप्शन वाले भी तो बताओ कहाँ है आंसर। अब ये डिस्कस क्यों कर रहे हो कि किसने थर्ड बोला था? कोई नहीं है, कोई नहीं है, थर्ड वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब हम फर्स्ट और सेकंड पे वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। So question says the 2 factors that are promoting sales of e-retailers, right? So you people are saying exchange offers and easy financing options available, and some of you are saying quick delivery and good products. Coming back to the passage, exchange offers and financing options provided by e-retailers have pushed sales. ये लाइन है फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए। सेकंड वालों के लिए है ऑनलाइन सेल्स ऑफ लार्ज appliances have boomed in the past 2 years as e-retailers have addressed buyers delivery and installation concerns. बात दोनों में ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत क्लोज है, बट इफ वी गो बाय द वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द आंसर। इसमें यहां लिखा है दे हैव एड्रेस्ड दिस इशू, ठीक है। एड्रेसिंग दिस इशू कुड भी उन्होंने उसमें चेंजेस किए या सर्विसेज प्रोवाइड की, they have addressed this issue. But the second one, this line says it has pushed sales, which the question is saying. Question में clearly mention है promoting sales. So push sales, promoting sales, that is why this option will go. Yes? हाँ? हाँ, उसमें boomed sales है, increased sales है, I agree. But यहाँ पे जो ये point लिखा है addressed the issue. एंड यहाँ पे लिखा है ये ऑफर्स दिए गए थे, दैट इज वाई। क्लियर? ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स आर अफेक्टेड बाय ई रिटेलर्स। ओके, आई हैव ओनली वन आंसर, 4 4 4 4। कोई और क्लेम करने वाला है 4 के अलावा? I got it. 4. By eating into their profits. अच्छा, कहाँ है ये? लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैरा, which line? Most manufacturers are, however, tight-lipped about online sales as e-retailers' discounts and freebies eat into the margins of their brick and mortar dealers. Yes? Did you underline this part also? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब जो क्वेश्चन है वो तुमने पहले से अंडरलाइन कर रखा था, मतलब आई एम अमेज्ड। कैसे? इतना बिजार कोइंसिडेंस। हाँ, सारे इत्तेफाक आज ही होंगे एक ही पैसेज में, वो भी 5 बार, वो भी सबके साथ। नो, ऐसे तो नहीं हो सकता, सच बोलो। हाँ,
मैम हो सकता है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे डायलॉग्स हैं और फैक्ट्स हैं। तो तो सबने सब अंडरलाइन, वही पार्ट अंडरलाइन मैम कर बाकी रखा सबसे पूछ लो। मैं तो सबसे ही पूछ रही हूँ, मैंने खुद ने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, मैंने खुद ने अंडरलाइन नहीं किया। सच बताओ, सच बताओ। कैमरा ऑफ करूं फिर सच बताओगे? सच बताओ, कौन है, कौन है वो हिम्मत करेगा, करेजियस, जो सच बताएगा? अच्छा देखो, एक वहां पे हाथ आया, ये है दो करेजियस बीइंग्स। मिस्टर योयो भी है एंड में, ही डिड लाइक दिस। मैम अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन जब क्वेश्चन रीड किया था तो दोबारा रीड आउट कर लिया था वो पार्ट। नॉन अंडरलाइन पर? यस मैम। ओके, एंड द वन जस्ट सिटिंग? मैम मैंने 2 क्वेश्चंस को अंडरलाइन करा था अच्छा, और बाकी हमने डिस्कस करके कर लिया था थोड़ा। बाकी हमने डिस्कस करके कर लिया थोड़ा था। सा आंसर्स वगैरह मतलब कंफर्म कर रहे थे। अच्छा ओके, एंड वो वहाँ पे मिस्टर योयो सिंह, अच्छा यू डिड लाइक दिस ना, ऐसे नहीं करा तुमने, यू यू किया। मैम मैंने मैंने, हाँ मैंने क्वेश्चन 4 नहीं किया था, बाकी सारे अंडरलाइन थे। क्वेश्चन 4 नहीं किया था, बाकी सारे अंडरलाइन थे। देखो ये धीरे धीरे करके सच बाहर आ रहा है। और कोई? अच्छा यहाँ पे भी है कोई सच बोलने वाला। ये डिस्कशन छोड़ दो प्लीज, ये कि हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ तेरा भी यही, मेरा भी यही, पेपर में ये सब नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 5 नहीं किया था। क्वेश्चन 5 नहीं किया था। दैट्स ऑनेस्टी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ रियल सिचुएशन है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सब ने सब अंडरलाइन किया हुआ वही क्वेश्चंस वही पार्ट, नॉट पॉसिबल राइट? मतलब इतना बिजार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो डिस्कशन थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे बिकॉज पेपर में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है यहाँ कर रहे हो, बट बैक होम जब करोगे तब तो डिस्कस नहीं कर सकते। तब व्हाट्सएप ग्रुप मत बना लेना कि मेरे को ये आंसर्स लग रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहे हैं, वो मत करना, क्योंकि पेपर में वो नहीं होगा। सो वाई टू प्रैक्टिस समथिंग विच यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली डू इट इन द एग्जाम। वो सिस्टम में ही मत लाओ अपने। गई वो 12th जब व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर डिस्कस होते थे और वही फिर कॉपी पेस्ट करके स्लाइड बना के PDF बना के अपलोड कर दिए जाते थे। वो 11th 12th गई, बाय बाय। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब पेपर में इतना भी टाइम नहीं होगा कि हेड अप करके और तुम देख भी सको कि और कौन कौन है, उसको भी नहीं देख पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो कमिंग टू दिस, the last part is you're saying the answer by eating into their profits. So this was entirely objective based, right? So let's do one more passage which has a mix of questions, objective plus subjective. So let's find one. I think we can go to practice questions. There you will find a mix of questions. Okay, here it is on page number 23, practice questions. RTP May 2020. So RTP is revision test paper जो ICAI ट्वाइस अ ईयर, जून और दिसंबर के एग्जाम से पहले अपने रिवीजन टेस्ट पेपर्स निकालती हैं। सो ये मई 2020 का रिवीजन टेस्ट पेपर है, उसका क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आया था वो है ये। सो इफ़ यू कैन सी, इसमें नीचे मिक्स क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस आर MCQ format and the other 2 are subjective in nature, right? So let's skim this passage too. Page 23, practice questions, RTP May 2020.
This is a smaller one, so I hope we are done. Done? So what this passage is talking about, and I would appreciate कि और लोग भी participate करें. See, it's very important to interact, not just कि मुझे problem पता चलेगी, but it is important so that we will gain the confidence to talk in front of so many people. So when tomorrow you're going to step out and be a chartered accountant and work somewhere, so that confidence building is actually something that you will, not only the degree, but other aspects of life which are required, you'll also gain here. Speaking in front of so many people, confident about your viewpoint. And secondly, if you're talking, then definitely I can correct you, and the purpose is not to demean you, but rather to correct you so that you speak correctly, and in fact others can also learn. So I would really appreciate if we can start practicing this. Yes? In today's era, because of globalization, liberation, there are many MNCs coming in India, which makes India an economic village. And because of this, there are increase in capital market, Okay. and it also lead to high standards in financial reportings. Okay. And somebody from here also raised hand. Acha, okay. Then we'll come here. This passage talks about how globalization has led to an emerging need for a globally accepted set of accounting standards. There have been several problems faced by various entities, so IFRS has come into existence. Okay. Are they saying correct? सही बोल रहे हैं ये लोग? Okay. Ma'am, according to the passage, the capital market, how works in the economy, and its inefficiency, and how do we can overcome. That's it. Okay. How we can overcome the same? इसी row में last में, black. Ma'am, this passage is talking about the development of capital market through globalization, liberalization, and there is a problem that the use of different accounting framework in different countries, the solution of which is IFRC, and thousands of companies will adopt. There is a prediction. Okay. Huh? The passage talks about globalization and liberalization of business world and development of e-commerce. Increased complexity of business transaction call for need of high quality accounting standard, due to which IFRS is adopted while preparing financial statements. Okay. For preparing financial statements. Huh? Ma'am, it's talking about integration of an normal economy with the whole world, integrating in a whole into one, and it's about like giving a platform to each and everyone, like not to raise capital from nationally or from the district only, but from the whole world. One can connect globally with each other, and they can raise funds and like increase their connections. Good enough. So whatever they said, is it making sense? Is it resonating with you people? Yes, this is what the passage is talking about. Even you could gather the same. Yes? Anyone else who would like to answer too? Okay, so let's move to questions. What trends are forcing capital markets across the world for integration? So what is it that is compelling them to integrate the capital markets across the globe? You have the answer. Okay, okay. Anyone else? Answer, answer. आंसर अच्छा वहाँ पे भी आंसर है, चलो वहाँ पे भी आते हैं. Yes. The entities in emerging economics are increasingly accessing the global market to fulfill their capital need by getting their security listed on the stock exchange outside the world. Thus, it becoming integrated, consistent with this worldwide trend. Okay. Let's hear other answers first. यहाँ पे and then पीछे.
capital markets are becoming more integrated because the companies are increasingly accessing the global markets to fulfill their capital needs by getting their securities listed on the stock exchanges outside the country. Okay. Last में वहाँ पीछे. Who raised the hand? Somebody in white shirt, if I'm not mistaken. मैंने गलती से सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया. कोई बात नहीं, सेकंड का आंसर बता सकते हो. ए पार्ट. ए पार्ट, अच्छा ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा. अच्छा, और कोई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए? इन दोनों ने सही बोला, यही आंसर है. अच्छा, कहाँ पे है ये आंसर पैसेज में? फर्स्ट पैरा में. फर्स्ट पैरा फिफ्थ लाइन, द एंटिटीज इन इमर्जिंग. हाँ, अब ये बताओ ये आंसर लिखोगे कहाँ तक? The entities in emerging economies are increasingly assessing the global markets to fulfill their capital needs by getting their securities listed on the stock exchanges outside the country. ठीक है? He said the answer till here. She extended it to capital markets are thus becoming integrated, consistent with this worldwide trend. You stopped over here, I suppose? हाँ. So till where will you write this answer? फर्स्ट लाइन लिखोगे, बोथ लाइन्स लिखोगे? फर्स्ट लाइन, हाउ मेनी फॉर फर्स्ट लाइन? दैट ओनली फर्स्ट लाइन शुड बी रिटन. ओके, सो रेस्ट ऑफ यू बोथ लाइन्स और उससे भी ज्यादा लिखना चाहते हो? नहीं, मतलब पूछ रही हूँ ना पहले ही. फर्स्ट लाइन के बाद क्वेश्चन की ही लाइन लिख सकते हैं. एंड दोज हु आर सेइंग कि दोनों लाइंस उसके बाद हम क्वेश्चन की भी लाइन लिखेंगे, और इज दैट इनफ? उसके बाद क्वेश्चन की भी लाइन लिखेंगे. अच्छा, क्यों? एंडिंग फ्रेम हो जाएगी. अच्छा, एक प्रॉब्लम जो मैंने बहुत नोटिस की है व्हाइल इवैल्यूएटिंग अनसीन पैसेजेस, हमें क्या होता है, हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है, बट हम सुपर श्योर नहीं होते. हमें ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे वाली लाइन भी आंसर है. तो हम क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं. हम तीनों लाइन लिख देते हैं, कोई तो आंसर होगा, है ना, और हम तीनों लाइन लिख के आ जाते हैं. करते हैं हम ऐसे? एग्रीड? वी नीड प्रिसाइज आंसर्स. ये जो स्टोरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कर दो, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ तो आंसर है ही. ये फंडा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कर दो, उसमें से उसी में से आंसर है, आगे पीछे एग्जैक्ट हमें नहीं पता. सो इवैल्यूएट जब होगा तो मार्क्स तो मिल जाएंगे. सॉरी, मूव आउट ऑफ CBSE. वो CBSE है, चाइल्ड सेंट्रिक, स्टूडेंट्स फ्रेंडली, जहाँ पे ऐसे ही पेपर्स चेक होते हैं. एक वर्ड भी अगर है, मार्क्स दे दो बच्चे को, पास कर दो. यहां पे वो नहीं होगा. या तो बैंग ऑन आंसर है या फिर सिर्फ रॉन्ग आंसर है. यस, या तो बैंग ऑन आंसर है या फिर सिर्फ रॉन्ग आंसर है. सो डेवलप दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ओनली प्रिसाइज आंसर्स, नॉट स्टोरीज. पैसेज कॉपी करना छोड़ दो. इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम टू. Remember, we calculated we have only 1.8 minutes for 1 mark. And if there are 5 questions in this, that means each question carries 1 mark. 1 mark के लिए इतना टाइम स्पेंड करोगे? है ही नहीं तुम्हारे पास. You can't afford that. है ना? तो जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर बात ही खत्म हो गई. पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रही है तुम्हारी कि तुम इतना स्पेंड कर सको. लोन थोड़ी ना लोगे, CA हो. CA तो लोन देते हैं, लेते थोड़ी ना है. स्मार्ट हो तुम लोग, राइट? सो डेवलप दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग प्रिसाइज आंसर. सो इवन आई थिंक दैट राइटिंग ओनली फर्स्ट लाइन वुड बी सफिशिएंट, राइट? एंड इट वुड डू द वर्क, एंड एक्चुअली रिलेटिंग इट with the question line would be more than enough. Yes? Coming to question 2, which creates confusion for users in financial statements. A, B, C, D में से
So we have okay. वो कौन सा आंसर है? दो नो जो तुम्हारे साथ में बैठा है, क्या आंसर है? बिकॉज उसके हाथ ऐसे हैं. ए अच्छा, वन आंसर. ओके, सो हियर आई हैव गॉट 2 2s, रेस्ट सबका 1 था. तो बताओ 2 सेकेंड वाला ऑप्शन क्यों है आंसर? डिफरेंट कैपिटल मार्केट फ्रेमवर्क, या फर्स्ट आंसर क्यों है डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क? बताओ कौन सा आंसर है, सेकेंड या फर्स्ट? अरे जो सेकंड बोल रहा है उससे भी तो पूछने दो, हो सकता है उसका ठीक हो. और फर्स्ट क्यों है आंसर? फर्स्ट पैरा में है. अच्छा, मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है. This confusion leads to inefficiency in capital markets across the world, therefore increasing complexity of business transactions and globalization of capital markets. Call for a single set of high quality accounting standards. Okay. And before that, they are talking about accounting frameworks. So I think it should be A only. So Phil, this is the only answer. Okay. Which is not considered as a principle-based set of standards for preparation of financial reporting? A, B, C, D. चीटिंग नहीं करेंगे अब. ओके ओके, ये बड़ा कंफ्यूज्ड आंसर है कि ओके. सो आई हैव गॉट 1 2 4. ये 4 था ना? हाँ, 1 2 एंड 4 एज ऑप्शन. कोई 3 वाला भी है? 1 2 4. अच्छा, सब अपने रीजंस बता दो, कहाँ पे लिखा हुआ है ये. और जिसने तो मतलब मैक्सिमम ने इस क्वेश्चन में हैंड ही रेज नहीं किया, छोड़ो, बहुत कंफ्यूजन है. अच्छा, अगर सपोज जिनने हैंड रेज नहीं किए, अब ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, कुछ तो लिख के आओगे. तो इफ दैट इज द सिचुएशन, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? डोंट गो बाय द विंड. व्हाट डज योर हार्ट से? 4. अरे बहुत लोगों ने हैंड रेज नहीं किया था. बताओ बताओ. 2 1 2 4 2 4 1 1 2. अच्छा, रीजन बताओ लास्ट में. अर्चित ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. हाँ, अर्चित बताओ. मैम, बिकॉज दैट्स फॉर इंडियन, मतलब इंडिया के हम इंटरनेशनली क्यों यूज़ करेंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉट कंसिडर्ड. अच्छा, ठीक है. ओके, जो 2 बोल रहा था, 2 वाले और 4 वाले भी हैं यहाँ पे. ये 4 वाले हैं, ये डिस्कशन वाली टीम जय वीरू की जोड़ी है. मैम, क्योंकि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स आंसर होगा. क्योंकि अकाउंटिंग तो है ही नहीं इसमें, इकोनॉमिक है तो. अच्छा, और 2 वाले कहाँ हैं? 2 वाले तो बहुत थे. अच्छा, ही इज गोइंग टू टेल द आंसर 2 क्यों है. मैम, ए और सी के बारे में हमें आइडिया है पहले से, और पैसेज में है भी. देन बी और डी बचे. तो हिट एंड ट्रायल से बी के बारे में गिवन है पैसेज में, एंड जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने यही देखा है कि IAS से कन्फ्यूजन लीड हो रही है. सॉरी, IAS नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कन्फ्यूजन लीड हो रही है. तो बी आंसर है. अच्छा, हमने पैसेज में कहीं ये नहीं मिल रहा है. अच्छा, ही ऑल्सो वांट्स टू से पैसेज में कहीं नहीं है ये. मैम, पैसेज की लास्ट लाइन में लिखा है कि विल अडॉप्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मतलब ये अभी इनको मानते नहीं है, बाद में अडॉप्ट करेंगे. क्या? इसलिए सेकंड ऑप्शन. बट बेटा, क्वेश्चन तो कह रहा है नॉट कंसिडर्ड. तो मैम अभी कंसीडर नहीं करते, वो बाद में अडॉप्ट करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ लास्ट लाइन में. अच्छा, ठीक है. तो इसलिए तुम्हारा आंसर 4 है. और नहीं, हम बी. बी है, सेकंड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और थर्ड तो कोई मतलब पूछ ही नहीं रहा है. थर्ड नहीं है, ठीक है. अच्छा, लास्ट लाइन में सिर्फ मेंशन है, उसके अलावा कहीं मेंशन नहीं है.
श्योर है हम? कहीं कुछ नहीं लिखा? पूरा पैसेज पढ़ लिया? हाँ, पूरा पैसेज पढ़ लिया कि कहीं कुछ मेंशन नहीं है? ओके, लेट मी ऑल्सो सी कि कहाँ पे है ये, कहाँ पे नहीं है. See, international financial reporting standards, which is IFRS, वो तो बोल रहा है they are considered as principal set of standards. वो तो principal set of standards है. That means option number C तो है ही नहीं, right? And then will adopt the international financial reporting standards while preparing their financial statements. I don't think so that D should be the answer. D तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा. International economic standards. Wait. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करनी है ना? डी शुड बी द आंसर. जय वीरू ने सही बोला. तुम खुद देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंस की रिपोर्टिंग बनानी है. सी तो वो बोल ही रहे हैं कि इट इज अ प्रिंसिपल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड सून फ्यूचर में लोग अडॉप्ट कर लेंगे इसे. ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो अभी तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करते ही हो. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो कंपनी इंडिया में रह के भी या बाहर जो डील कर रही हैं या जो ग्लोबली डील करती हैं बाहर की एमएनसी से, वो इस स्टैंडर्ड से अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स उनकी बना के देती हैं. तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओगे? अच्छा, वो कुछ कहना चाहता है? दो है. अच्छा, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें प्रिंसिपल सेट ऑफ वो बताने हैं स्टैंडर्ड्स, तो इंडियन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड तो इससे कहीं से रिलेट ही नहीं करता. इंडियन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स जो हाँ, है तो रिलेट नहीं करता. बट हम इसमें कंसिडरेशन में ले सकते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. कंसिडरेशन में ले सकते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल बेस सेट नहीं होंगे बट वो स्टैंडर्ड्स हैं. हाँ, so B can be considered, but D I would say is the most appropriate answer. B can be considered. बट डी को तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प ही नहीं करता, तो वो तो बिल्कुल ही वो मैच नहीं है. हाँ. बट इसमें हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल बेस सेट नहीं है. इसलिए तो बोल रही हूँ D. मैम अच्छा, दोबारा बोलो अपनी बात, दोबारा बोलो, मुझे समझाओ. मैम जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS हाँ. वो प्रिंसिपल बेस सेट्स हैं. बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं बट उनको हम प्रिंसिपल बेस सेट्स नहीं कहते. सो दे कैन बी द आंसर, दिस कैन बी द आंसर. तो मैंने भी तो यही बोला. आपने कहा कि इंडियन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स होंगे क्योंकि वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता इस टॉपिक वो पे. बिल्कुल रिलेट नहीं करता. आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग प्रिसाइज एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड टू. मैंने खुद नीचे आंसर्स में B दे रखा है ना? आंसर्स में नीचे B दे रखा है. आई एम नॉट सेइंग इट इज नो. मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी D. हाँ, he also wants to say something. ये तुमने 1 वाले जो थे, ये 1 वाले का लॉजिक अब मुझे बिल्कुल ही रॉन्ग लग रहा है. फर्स्ट पैरा में लास्ट 4 लाइन देखो, लास्ट 4th लाइन. फर्स्ट पैरा की लास्ट 4th लाइन ये है कहीं से कुछ निकल के. अंडरलाइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, हाँ मैम, तो यूज तो होता है ना. The use of different accounting frameworks in different countries which requires inconsistent treatment and presentation of the same underlying economic transactions creates confusions for users of financial statements. Different accounting frameworks. यूज तो हो रहा है मतलब उसको निकालने के लिए. हाँ, तो उसमें तो वही दे रखा है ना, इकोनॉमिक. इसीलिए तो मैंने D बोला था. नहीं, मतलब इकोनॉमिक तो यूज हो सकता है, उसमें लिखा है कि जो यूज नहीं होगा. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, मतलब यूज होते हैं ना वो निकालने में. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, फ्रेमवर्क नहीं है, प्रिंसिपल सेट नहीं है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाली, नॉट फ्रेमवर्क. देखो व्हाट इट इज सेइंग. इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस होता है. यस, अभी भी कंफ्यूजन है.
जिसका आंसर ठीक है वो तो कहना नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसने 1 and 2 बोला था उसको, 1 वालों को तो नहीं होनी चाहिए प्लीज, 1 वाले तो रॉन्ग ही थे, ठीक है। 2 को मैंने बोला है वी कैन कंसिडर, 2 and 4। कंफ्यूजन? हाँ या ना बोल सकते हो। हाँ है? हाँ तो बोलो क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करूं। अच्छा ठीक है, सो सी आउट है हमारे ऑप्शन में से, ठीक है। ए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं, जो पैसेज बोल रहा है अभी हम फॉलो करते हैं। फ्यूचर की पॉलिसी है टू ग्लोबलाइज एवरीथिंग एंड टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर वन सिस्टम, जस्ट सो दैट सबके लिए इक्वल हो जाए। वो हम IFRS अडॉप्ट कर सकते हैं, तो अपना सिस्टम रॉन्ग नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दीज टू, बिकॉज द सेकेंड ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको यूजुअली हम यूज करके ही बनाते हैं, एंड दिस पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली इंडिया। तो इंडियन अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी तो करेक्ट है ना, वहाँ के जो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, जो कंट्री यूज करती हैं, उसके पर्पज से इट इज करेक्ट। बचा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से आप फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बनाओगे, दैट इज वाई। अब क्लैरिटी है। Moving to fourth, which standards are taken as basis for preparing financial statements? Two. वो ये पेंसिल वाला जो है हैंड है, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे होता है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। फोर्थ, ओके, 2 and 4th। अच्छा, सेकेंड आंसर है, कहाँ लिखा है? लास्ट में, इंटरनेशनल IFRS। ओके, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हियर? ये जो यहाँ पे गर्ल्स हैं ये बोलना चाहती हैं, अभी तुम्हारे पास भी आएंगे, बट हियर एंड देयर, जिसने नहीं बोला अभी तक। The use of different accounting frameworks in different countries, which requires inconsistent treatment and presentation of the same underlying economic transactions, creates confusion for users of financial statements. Therefore, increasing complexity of business transactions and globalization of capital markets call for a single set of high-quality accounting standards. Okay. Here. Can you pass it on? With the opening of the world economies and globalizations, the domestic companies have started getting their securities listed on international markets as well, which leads to complexities of business transactions and inefficiency of capital market, which hence calls for a rigid set of single global financial reporting standards. Okay. At the back, वहाँ पे बोरा। Ma'am, need for single set of high quality accounting standards is because of the increasing complexity of business transactions and globalization of capital markets. Okay. Anyone else? जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ठीक है। सब आंसर्स ध्यान से सुनना, अलग अलग आंसर्स हैं। There is a need for single set of global financial reporting standards because the use of different accounting framework leads to inconsistent treatment and presentation of same underlying economic transaction, create confusion for the users of financial statements. Okay. यहाँ पे Increasing complexity of the business transaction, globalization of capital market call for a single set of high quality accounting standards. Okay. यहाँ पे There is a need for single set of global financial reporting standards is to avoid confusion of using different accounting frameworks, which leads to inconsistent treatment and presentation of the same underlying economic transactions. Okay. Somebody at the back also raised hand.
Lakshay, was it you? Lakshay and pink shirt. नाम बता दो मुझे, प्रॉब्ली थोड़ी थोड़ी क्लासेस के बाद याद हो ही जाएंगे, कुछ क्लासेस के बाद तक. The use of different accounting standard, the use of different accounting practices leads to complexity in understanding business transactions. So there is a need for single set of global financial reporting standards. Okay. Anyone else? Ma'am, we need to single set of global financing reporting standard because to maintain high quality standards and reduce complexity. Okay. So, which answer is correct? कौन सा आंसर करेक्ट है? अरे बताओ. हाँ. What is your name? तनिष्क. गोल्ड ज्वेलरी. मैम लेफ्ट में से एक लड़की ने आंसर देख के बोला था तो वो सबसे सही है. कौन है वो जिसने देख के आंसर बोला था वो सबसे सही है? कौन यहाँ पे? You talking about these? I think you saw the answer and then said, right? बाकी ने शायद ओवरव्यू से पढ़ा था. अच्छा, ये आंसर ठीक है. और गुरु का ज्ञान हमारे पास आ चुका है. हाँ, जो सेंट की वाणी होती है वो आ गई है. और कोई गुरु जो अपना ज्ञान बांटना चाहे कि वो सही है, बताओ. अरे कौन सा आंसर करेक्ट है? उसने तो बता दिया वो आंसर करेक्ट है. मैं तो उसी का कॉपी करके लिख के आऊंगा. बाकी 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 अरे कुछ तो खुद ने भी सोचा होगा ना. क्या सोचा है? क्या सोचा है? नहीं आंसर आता? क्या है फिर आंसर? अच्छा, यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करने के लिए. शायद ये वाला पॉइंट तो शायद किसी ने नहीं बोला. सबने कॉम्प्लेक्सिटीज बोला है एंड हाई स्टैंडर्ड बोला है, कंफ्यूजन बोला है. यूनिफॉर्मिटी तो शायद किसी ने नहीं बोला. बोला है किसी ने? मैंने मिस कर दिया है. नहीं, यूनिफॉर्मिटी तो किसी ने नहीं बोला. तो फिर क्या है आंसर? You read out, I think, this part that this confusion leads to inefficiency in capital markets across the world. But I think you read somewhat before that. The use of different accounting standards se start kiya tha. The use of different accounting frameworks in different countries. अच्छा, यहाँ से लेके you said till here, है ना? ये है आंसर. Increasing complexity of business transactions and globalization of capital markets. This is all right. Complete है. इसको paraphrase करके ये जो यहाँ से which he started, use of different accounting frameworks leads to inconsistent treatment and presentation. इसको paraphrase करके, जैसे बाकी लोगों ने इसको paraphrase करके बोला है ना, अपने words में थोड़ा सा change करके बोला, join करके, कुछ cut करके, वो करके लिखोगे तो भी correct है, last line लिखोगे तो भी correct है. और ओवरऑल पैसेज जो बोल रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एक स्टैंडर्ड से हम ग्लोबलाइज करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे पूरी मार्केट्स को सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, उस पैराग्राफ को भी पैराफ्रेज करके 2 लाइन लिखोगे तो भी करेक्ट होगा. तो भी करेक्ट होगा. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, गॉन आर द डेज जब बिल्कुल पैसेज में पूछा और वहीं से वो 2 लाइन निकल के आंसर होता था. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से वो 2 लाइन निकलेंगी और वही आंसर होगा. इट कुड बी पैराफ्रेजिंग ऑल्सो, इट कुड बी एन ओवरव्यू ऑल्सो. यस. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी साइड से है इसके लिए. विच टाइटल, व्हाट टाइटल वुड यू गिव टू इट? बिकॉज इट हैज़ नो टाइटल. हाँ. वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक विलेज. World and economic village. An economic village. And. Okay. World dash and economic village. वहाँ पे. अच्छा, तुम अभी दाग द फायर से बाहर नहीं आए हो. कल भी वही था ना, वो लास्ट में वो पीच टॉप में. हाँ. Origin of IFRS. Origin of IFRS. Okay. वो.
Effects of globalization and liberalization on accounting standards. Effects of globalization and Era of globalization and liberalization. Can you please repeat? Era of globalization and liberalization. Era of globalization and liberalization. अच्छा. Dynamic markets. Okay. Ma'am, need for international accounting standards. Sorry? Need for international accounting standards. Need for international accounting standards. Okay. Emerging of economy. Emerging of an economy. Emerging of an economy, not so appropriate. Emerging of an accounting standard तो भी ठीक है. Emerging more थोड़ा सा वो लगता है. Ma'am, development of e-commerce. Development of e-commerce. Yes. E-commerce? कैसे? As we are heading towards single economy, here we are developing by using e-commerce facilities. E-commerce कैसे develop हो रहा है? Globalization हो रहा है तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बट हम उसमें जो एग्जैक्ट बात कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, हम सब एक जैसे अपनी बैलेंस शीट एक जैसे बनाएं. बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपने जो अपना टैली है, अपना अकाउंट्स है, अपना बिजी है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करके काम करते हैं वो सब एक जैसा हो. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम सब ऑनलाइन चले जाएं. वो उसका बाय इफेक्ट होगा. यस, मे बी उसका बाय इफेक्ट होगा, बट फिर भी तुम अपनी बैलेंस शीट दूसरी कंपनी के साथ शेयर तो नहीं करोगी. तो ई कॉमर्स कहाँ से आया? सो मैम, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बेटर. हाँ, पीछे वालों से फिनिश होके आगे आएंगे. Problem of different accounting frameworks. प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स. ओके, लास्ट में. अच्छा, पहले इधर फिर लास्ट में. हाँ बोलो. हाँ हाँ बोलो. बोलो. ग्लोबलाइजेशन द नीड ऑफ द आवर. अच्छा तो हाँ मैम. ग्लोबलाइजेशन द नीड ऑफ द आवर. ठीक है. डैश द नीड ऑफ द आवर. ओके मैम, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ओके, यहाँ पे आगे वाला थोड़ा जोर से बोल देना, बाद में मेरे को सुनाई दे जाएगा. Accounting and economic development. Accounting and economic development. ओके, बहुत कोरिलेटेड नहीं था. IFRS dash bridging the world economy. Global financial reporting system. Integrating accounting standards. कौन है ये? Integrated accounting standards. Integrating कर ले फिर इस. हाँ अच्छा, integrating accounting standards. अच्छा ठीक है. हाँ, क्या बोला था यहाँ पे? एक inefficiency of capital markets. अच्छा ठीक है. Adoption of IFRS. हाँ, Adoption of IFRS. adoption of IFRS. हाँ, यहाँ पे emergence of IFRS. अच्छा, uniting accounting standards. unifying accounting standards. हाँ, और business world. ये सबसे सिंपल. business world छोड़ो, ये वो हटाओ. और टाइटल तो सबने एक एक सोचा होगा कुछ कुछ, बट ये टाइटल्स ठीक थे. जो मैंने एक आध प्रॉब्लम बताई, बस वो लॉन्ग टाइटल्स को अवॉइड करेंगे, एंड डैश वाले टाइटल्स को भी अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो दैट वुड बी गुड. रॉन्ग नहीं है, बट है रीजन इतने वो. वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइटल. सेंटेंस लाइक देखते हैं, रॉन्ग नहीं है वो, अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है. शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, वो मैंने पहले ही बोला था. दैट्स इट. अदरवाइज ठीक है, जयवीरू के टाइटल्स गलत नहीं है, बट अदरवाइज ठीक है.
सो ये जो है क्या कहते हैं पैसेज अनसीन पैसेजेस का फंडा क्लियर हुआ कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. यस, सो देर आर न्यूमरस क्वेश्चंस गिवन. प्रैक्टिस मटेरियल बहुत है इसमें, राइट. आरटीपी जो है मतलब रिविजन टेस्ट पेपर्स जो आए हुए हैं ICAI में मई 2020 से कवर्ड है इसमें. उसके अलावा नॉट जस्ट रिविजन पेपर्स, मॉक पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स के अलावा मॉक पेपर्स भी ICAI निकालती है, वो भी है. उसके अलावा जो एक पेपर्स आए हुए हैं 2020 से, वो पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं एंड प्लस अदरवाइज प्रैक्टिस मटेरियल भी है. सो देयर इज इनफ टू प्रैक्टिस. सो अनसीन पैसेज इज समथिंग यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस एवरी डे. Once a week, one question would be more than enough. Once a week more than enough है. एक बार ठीक है देख लिया. So that why reading practice बनी रहेगी. That is important. Reading practice बनी रहेगी. When you will encounter new words, go back and find the meaning. So उससे हमारा जो vocab वाला part है, you never know, हो सकता है कोई पढ़ा हुआ word ही आ जाए. सो रीडिंग प्रैक्टिस मेंटेन होगी. जब रीडिंग प्रैक्टिस मेंटेन होगी तो हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी. प्लस इफ़ यू विल एनकाउंटर अ न्यू वर्ड तो वो वोकैब में हेल्प करेगा. तो वंस अ वीक भी करोगे 1 या 2 पैसेज, क्योंकि हार्डली 5-10 मिनट्स लगते हैं. इंडिविजुअली करोगे तो इतना ही टाइम लगेगा. ये तो हम ग्रुप में कर रहे हैं, सो इट इज़ टेकिंग टाइम, राइट. सो 5-10 मिनट्स लगेंगे. आई थिंक दिस मच टाइम यू कैन स्पेयर फॉर इंग्लिश. जब भी ब्रेक टाइम में या कुछ करना नहीं है, मतलब अब पढ़ना नहीं है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. 5-10 मिनट्स वंस अ वीक यू कैन ईजिली स्पेयर फॉर दिस एक्टिविटी. यस, सो कैन वी मूव अहेड? हाँ, ओके. सो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टीच यू इज नोट मेकिंग. खुशी की लहर क्या है? नोट मेकिंग नोट मेकिंग क्या है? वही जिससे हमें डर लगता है, वही जिसमें मार्क्स नहीं आते. व्हाट इज नोट मेकिंग? कौन बताएगा? अच्छा, वहां पे करी है सबने 11th क्लास में, है ना? नहीं करी? नॉट CBSE बोर्ड? अच्छा, CBSE बोर्ड होने. Ma'am, making small notes when there is time crunch. Making small notes when there is time crunch. अच्छा, ओके. और वहाँ पे लास्ट में वो Ma'am, after reading paragraph thoroughly, we make up points and using abbreviations. Using abbreviation we make points. अच्छा. और systematically keywords को record करना. ओके. और यहाँ पे आगे फिर आज बीच वाले नहीं बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? या तो पीछे से या यहाँ आगे फ्रंट से. Summarize the paragraph in main key points. Summarize the para in main key points. अच्छा. और कोई करते क्यों हैं हम ये? हाँ? It takes less time. अच्छा, during the time of revision, he said, during the time of revision, it takes less time. That is why we make notes. और कोई reason? Quick recap. हाँ, almost the same thing. And keywords मिल जाते हैं. हाँ. मैम की जो की पॉइंट्स होते हैं वो याद रह जाते हैं. Key points याद रह जाते हैं. ठीक है. Any other reason? Highlights the main theme. मैम अगर किसी पैराग्राफ का हम उसका मेन टॉपिक उठा के, मतलब उसका मेन कोई वर्ड उठा के अगर हम उसको हेडिंग बना देते हैं, तो जैसे इकोनॉमिक्स में भी पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसका मेन हेड पॉइंटर से याद करके उससे इजीली याद हो जाता है सारी चीज़ें. फिर हम कंटेंट तो अपने आप भी बना सकते हैं ना बाद में, तो इसलिए नोट मेकिंग. ओके. मैम, टाइम सेव करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि एक थॉरो रिवीजन हो जाए.
टाइम सेव करने के लिए नोट्स बनाते हैं, एक थरो रिविजन हो जाए. ओके, so somebody said online that it's a summarized version of a passage, the passage given using abbreviations. हाँ, more and so बात तो यही है. So actually अगर हम note making देखें ना, it is being used by people across the globe, especially by orators. जो बहुत good orators होते हैं वो अपने साथ ये notes ही बना के रखते हैं. ठीक है, एक प्रोसीजर, एक फॉर्मेट में नोट्स बना के रखते हैं, की पॉइंट्स, सो दैट व्हेन दे आर एक्चुअली स्पीकिंग दे कैन जस्ट सी दैट पॉइंट एंड एज ही सेड दैट वी कैन एलैबोरेट ऑन द सेम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, हमें सिर्फ एक वो याद रखने के लिए एक वो की वर्ड चाहिए. क्विक रिविजन, डेफिनेटली इट हेल्प्स यू इन क्विक रिविजन, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक उठा के रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल. हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, उसका हमारे पास एक शॉर्ट हैंडी नोट हो जिसको हमने क्विकली देखा एंड एवरीथिंग इज रिकैप्चुलेटेड इन द स्नैप ऑफ अ फिंगर. बहुत जल्दी हमें सब कुछ रिकॉल हो जाए, हम वो नोट्स पढ़ते हैं. नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट इज सेम. जैसे अभी हमने वो इकोनॉमिक्स वाला, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पैसेज पढ़ा, so that it is universal in nature, so that if you make notes and I make note, we can exchange our notes. फिर ये नहीं हो कि मेरे नोट्स तुम्हें नहीं समझ में आ रहे और तुम्हारे नोट्स मुझे नहीं समझ में आ रहे. एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन जब होता है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन जब होगा नोट्स का, each one of us can understand it quite easily. That is why there is a format which is universal in nature, right? पैसेज पे, इस पैसेज को पढ़ने के लिए, इस पैसेज को डील करने के लिए अब हमें स्किमिंग नहीं करनी है, अब हमें स्किमिंग नहीं करनी है, अब हमें रीड करना है. रीड ट्वाइस. पहले पढ़ना ही नहीं था, स्किम करना था, अब 2 बार पढ़ना है. When you read for the first time, अंडरस्टैंड, क्योंकि इस बार अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, इस बार रिक्वायर्ड है. पहले वेग आइडिया से हमारा काम चल रहा था, इस बार मुझे पैसेज को समझना बहुत जरूरी है. एंड व्हेन यू रीड फॉर द सेकेंड टाइम, अंडरलाइन एंड सेग्रीगेट. I call it the Roos way. You read twice, you understand it, underline, and you segregate. Why are we doing it this time? Notes हम सोचते हैं it is limited to कि हमने फ्रेजेस बना दिए, सेंटेंस यूज़ नहीं किए, एब्रीविएशंस यूज़ कर ली, वर्ड्स लिख दिए, हो गए नोट्स कंप्लीट. अगर उन नोट्स में से कुछ मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है तो वो नोट्स यूजलेस हैं. फिर सारा फॉर्मेट फॉलो करते हुए भी उसके मार्क्स नहीं हैं, क्योंकि वो मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहे, विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. हमें लगता है 4 पैरा है तो 4 पॉइंटर्स बना दो, बात खत्म, हर पैरा का एक. ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं. नोट्स का पर्पस है मीनिंग कन्वे करना. अगर तुम इको के नोट्स की बात की थी, तुम इको के नोट्स बना रहे हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, बट सोचो तुमने सिर्फ उसमें से वही फ्रेजेस उठाए, वर्ड्स उठाए, एब्रीविएशन यूज करी, फॉर्मेट के साथ उसको लिख के दे दिए, उससे मीनिंग ही रेंडर नहीं हो रहा है, तो वो नोट्स उसके लिए वेस्ट है, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो समझ में आने चाहिए, उससे मीनिंग कन्वे होना चाहिए. And it is very explicitly said that whatever writer wants to convey through his notes, through his passage, should be there in your notes. Your notes should convey the gist, the main idea which the writer wanted to convey through the passage. अगर मैं ये इकोनॉमिक वाले की ही बात करूं जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पढ़ा है,
तो जब मैंने तुमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि व्हाट इज़ द आइडिया, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से, क्या 2 वर्ड्स में 2 लाइंस में बताओ, तो तुमने बताया दैट देयर इज़ अ नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एवरीथिंग इज गोइंग हेवायर एंड दे नीड टू ब्रिंग इट ऑन अ यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेट द होल सिस्टम, राइट? सो ये आइडिया कन्वे होना चाहिए। उसने क्या बताया, क्यों चाहिए? कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मार्केट्स इंक्रीज हो गई, इस वजह से चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए कि क्यों वो कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। फिर वो बता रहा है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटर है, किस किस ने अडॉप्ट कर लिया, सून क्या पॉलिसी है कि फ्यूचर में हु ऑल आर गोइंग टू अडॉप्ट। ये पॉइंटर्स होने चाहिए। दैट इज वाई रीडिंग द पैसेज वंस इज फॉर थरली अंडरस्टैंडिंग इट। उसका पर्पस कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता लगाना कि एक्चुअल में राइटर क्या कह रहा है, इंटेंशन क्या है। इसलिए थरली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। And during the second reading, when you have already understood what the writer wanted to convey, you underline the main points, because उसके बाद हमें पता चल गया ना कि यहाँ से इन्फो है, ये चीज़ जो है वो इन्फो वाली बात है, ये मेरे नोट्स में होनी चाहिए। And when you are underlining, you're going to segregate. By segregation I mean, जब हम पैसेज के हम अंडरलाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये आई थिंक ये जो तुम्हारा है कि 4 पैराग्राफ्स हैं तो 4 नोट्स बना दो, 4 पॉइंटर्स बना दो, ये नहीं होता। हो सकता है 2 ही पैरा हो और उसमें से 4 या 5 पॉइंटर्स बन जाएं, और हो सकता है 5 पैरा हो पर 3 ही पॉइंट्स बन रहे हो। वाई? बिकॉज समटाइम्स जो पैसेज होता है उसमें इन्फो मिक्स होती है। फर्स्ट पैरा में और मे बी सेकेंड पैरा में कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं वो एक ही हेडिंग के अंडरनीथ आ सकते हैं। So by segregation I mean when you are underlining, also segregate कि ये section किस part का है, and mark it and give it a header. तुम उसे cause बोलोगे, effect बोलोगे, intro बोलोगे, definition बोलोगे, तुम features बोलोगे, characteristics बोलोगे, depending upon the passage, problem बोलोगे, solution बोलोगे, suggestions बोलोगे। ये तुम्हारा टेक है, वो डिपेंड करता है पैसेज पे और इंफॉर्मेशन पे, बट वो तुम वहीं करोगे। हम फाउंडेशन पे मींस फ्रेमवर्क तैयार करने में जो टाइम स्पेंड करेंगे वो टाइम हमें हेल्प करेगा, बिकॉज एक्चुअली जब हम पेन डाउन करने लगेंगे नोट्स तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तरह से देखना है और कॉपी करना है, देख के कॉपी करना है, अब हमें कुछ भी और नहीं करना, राइट? तो वो टाइम हम सेव करेंगे, क्योंकि क्या होता है हम सोचते हैं अच्छा हमने पैसेज देख लिया, सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है हम कोहेरेंस खो देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिविटी खो देते हैं, क्लैरिटी खो देते हैं, और फिर वही होता है जितने पैरा हैं उतने पॉइंटर्स बना दो, तब हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहे हैं या फिर हमारी इंफॉर्मेशन सेंस नहीं बना रही। दैट इज़ वाई एट टाइम्स हम लॉस्ट होते हैं कि हम जब पॉइंटर्स बना रहे हैं तो हमें से लगता है अच्छा इस हेडर के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं, बट ये पॉइंट आना भी ज़रूरी है, अच्छा ये पीछे भी लिख सकते थे, अच्छा ये आगे आना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी जब पहले ही ग्राउंड वर्क कर लिया होगा। Initially, it will take time, let it take. Then, slowly, gradually, when you will practice this, you will take less time. Problem note making का यही है that you have to write a lot and it takes time. क्योंकि हमें हैबिट है सेंटेंसेस लिखने की, चाहे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस ही लिखें, बट हमें सेंटेंसेस की आदत है लिखने की। और नोट मेकिंग में सेंटेंस इज फॉरबिडन। जहां आपने सेंटेंस लिखा वहां वो रॉन्ग, सेंटेंस लिखना ही नहीं है, हमें वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करने हैं। अब ये तो हमारी हैबिट में होता नहीं है वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज करना, हम सेंटेंसेस के हैबिचुअल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा सेंटेंस यूज नहीं करना है, चलो
फर्स्ट वर्ड हटा दो, सब्जेक्ट इट हटा दो, आई हटा दो, जो नाम लिखा हुआ है वो हटा दो, बाकी का कॉपी कर दो. इजी वे. सेंटेंस थोड़ी ना है, पर तुम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, वो फ्रेज नहीं है, वो तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. वर्ब से स्टार्ट नहीं करने हैं नोट्स, ना प्रेपोजिशन से. या हम क्या करते हैं, बीच में जहां कंजंक्शन या प्रेपोजिशन यूज हुआ हुआ है, बाय लिखा हुआ है, थ्रू लिखा हुआ है, वहां तक ब्रेक कर देंगे और उसके बाद बाकी का जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पॉइंट्स में लिख देंगे. हो गया, फ्रेज यूज कर लिए हमने. तुमने तो सेंटेंस ब्रेक करा है और उसे डिवाइड कर दिया, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और पॉइंट्स फॉर्म में लिख दिया. वो नोट मेकिंग नहीं है. नोट मेकिंग थरली सिर्फ फ्रेजेस एंड वर्ड्स के थ्रू तुम्हारी इंफॉर्मेशन कन्वेड है. thoroughly and thoroughly words and phrases which are making sense. Can be done करके तुम आगे इंफॉर्मेशन लिख दोगे तो वो can तो वर्ब से स्टार्ट करा ना, वो नहीं करना है. वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर मेकिंग सेंस. सो वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो तुम्हें डेवलप करने पड़ते हैं अपने आप से पैसेज पढ़ने के बाद. जब तुमने इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर ली, उस इंफॉर्मेशन में से फ्रेज निकलेगा. सो यू कैन कम अप विद योर ओन वोकैब. सेम सिनोनिम, सेम वर्ड्स अप्लाई करके, सिमिलर वर्ड्स अप्लाई करके यू कैन राइट योर ओन वर्ड. दैट इज नोट मेकिंग. एंड देन उन्हीं नोट्स को सेंटेंस फॉर्म में ट्रांसफर करके तुम्हारी समरी बनती है. पैसेज से समरी नहीं बनती, जो हम यूजुअली फर्स्ट मिस्टेक करते हैं. चलो अच्छा, जैसे तैसे नोट्स बन गए, अब पैसेज लो, जो हमने अंडरलाइन किया है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, वही कॉपी एज इट इज कर दो, बन गई समरी. और मे बी मैंने नोट्स में से उसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं इंक्लूड किया है तब तो वो रॉन्ग हो गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसी से मैं अपनी समरी बनाऊं. योर नोट्स शुड मैरी योर समरी. बहुत इंपॉर्टेंट है. दे बोथ शुड मैरी ईच अदर. सेम होंगे बिल्कुल. राइट? ये बेसिक इन्फो है. नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द सेम. नोट मेकिंग में एक टाइटल होता है टॉप पे, ठीक है. नाउ द टाइटल इज बेस्ड ऑन द पैसेज. जैसे अभी हमने पैसेज पढ़ा, मैंने पूछा अच्छा इसका टाइटल क्या दोगे, सो दैट वेज यू कैन गिव वन टाइटल टू इट. अगेन नीड नॉट टू बी क्रिएटिव. इसमें इतनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है. जस्ट अंडरनीथ दैट यू विल राइट नोट्स. ओके, नाउ कम्स द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग. मतलब ये हेडिंग या टाइटल होता है तो इसको सब हेडिंग बोलते हैं. अब इसकी ये जो मार्किंग है, नंबर्स हैं, ठीक है, इसे इंडेंटेशंस बोलते हैं इन नंबर्स को. अब ये इंडेंटेशंस आउटसाइड द मार्जिन नहीं जाएगी, ये इनसाइड द मार्जिन ही रहेगी. ये नंबर्स इनसाइड द मार्जिन ही रहेंगे. दिस इंडेंटेशन, राइट? दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग. These are called notes. These are called sub notes or points. Now what is this indentation? This marking numbers which I have written. ये हमेशा एक पैटर्न फॉलो करेगा. तो जो मेन सब हेडिंग्स हैं, जितनी भी तुम्हारी सब हेडिंग्स होंगी वो एक ऑर्डर में सिंक्ड आएंगी, उनका नंबर भी और हेडिंग भी. जब तुम उसके अंडरनीथ पॉइंट्स लिखोगे, नोट्स लिखोगे अपने, वो एक पैटर्न फॉलो करेंगी.
ये थोड़ा सा डायगनल, मतलब जहां से मेरा वर्ड स्टार्ट होगा वहां से नेक्स्ट लाइन का ये नंबर स्टार्ट होगा. दिस इंडेंटेशन विच आई एम टेलिंग यू इज द ईजिएस्ट इंडेंटेशन. अदर वेज से भी इसको लिख सकते हैं, बट सपोज तुमने ऐसे लिखा यहाँ पे 1, उसके बाद लिखा A B C D, फिर 2, फिर A B C D. अब ये जो A है, ऊपर वाला A, दोनों सेम है. हाउ विल आई डिस्टिंग्विश? इसको ऐसे कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा. So this indentation which I am telling you 1, 1.1, 1.2, 1.3 is the easiest indentation. Easiest indentation. इसे याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता. ना तो याद रखने में प्रॉब्लम होती है, ना अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है. अगर इसका सब पॉइंट बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे तो बहुत इजी है. ये सब पॉइंट्स बनाते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डैश एंड कॉमा फॉर्म में यूज नहीं होता. कुछ भी डैश लगा के, कॉमा लगा के सारी इन्फो नहीं होती. जहाँ भी मुझे लगे कि मुझे अब डैश लगाना है या इन्फो कॉमा लगा के लिखनी है, उसके लिए ये सब पॉइंट्स होते हैं. सपोज तुम्हें किसी चीज़ के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, मीडियम लिखना है, सोर्स लिखना है. किसी चीज़ का मीडियम है, मीडियम टीवी है, मैगजीन्स है, तो तुम इसे कॉमा लगा के एक लाइन में लिखते, उसकी जगह इसे ऐसे सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दो. टीवी, मैगजीन, रेडियो, इसीलिए सब पॉइंट्स होते हैं. कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सब हेडिंग्स होंगी, कितने सब नोट्स होंगे, सब पॉइंट्स होंगे. किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक तुमने सब हेडिंग दी और पूरा का पूरा पैसेज उसी में कवर्ड हुआ है उसके सब पॉइंट्स बना के. वो नहीं करना है. 5, 6 अंडरनीथ 1 सब हेडिंग इज मोर देन इनफ. वो कवर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब हेडिंग के अंडर जो तुम लिख रहे हो वो भी तो उससे रिलेट करना चाहिए. दैट शुड ऑल्सो मेक सेंस. अगर मैं सब हेडिंग में यहाँ कॉज लिख रही हूँ, ठीक है, कॉजेज लिख रही हूँ, और यही मैं सोचूं चल 1.4 में ना मैं इफेक्ट्स भी बता देती हूँ, इट इज नॉट रिलेटिंग टू द कॉजेज. इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द कॉजेज, राइट? सो सब हेडिंग से रिलेट करने चाहिए नोट. एंड आई डोंट थिंक सो कि पूरा पैसेज ऐसे ही होगा कि 1 या 2 पॉइंट्स में ही पूरा कवर हो जाए. ना ही हम ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे कि हमने पॉइंट्स लिखा, सपोज मैंने 3rd में कोई सब हेडिंग डाली, सपोज इफेक्ट, और 3.1 एक इफेक्ट लिख के छोड़ दिया. ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं और सबमर्ज हो सकती होगी. खाली एक पॉइंट के लिए एक सब हेडिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. सपोज मास कम्युनिकेशन के ऊपर एक पैसेज है, तो हमने लिख दिया मास कम्युनिकेशन, सिंपल, हमने उससे रिलेटेड इन्फो थी, हमने हेडिंग अपनी टाइटल वो दे दिया. अब हमें उसके कॉजेज बताने हैं, इफेक्ट्स बताने हैं, सोर्स बतानी है, इंफॉर्मेशन बतानी है, डेफिनेशन बतानी है. तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, नहीं, हम सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे. मास कम्युनिकेशन तो तुम ऊपर पहले ही बता चुके हो, हेडिंग है. अगर इतना ही रिपीट करनी है इन्फो तो तुम्हारे नोट्स बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है. क्यों रिपीट कर रहे हो इन्फो? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में सफिशिएंट सब हेडिंग है. सेंटेंसेस कहीं अलाउड नहीं है, मतलब कहीं भी अलाउड नहीं है, कहीं भी अलाउड नहीं है, राइट? इसके साथ हमें यूज करनी होती है एब्रीविएशंस. नाउ व्हाट आर एब्रीविएशंस? शॉर्ट फॉर्म्स. अच्छा, तो VJC क्या है? VJC यूज कर लें, ये शॉर्ट फॉर्म है. श्योर? VJC शॉर्ट फॉर्म है.
है या नहीं है? कंफ्यूज क्यों हो? बोलो। है ना? अच्छा, तो फिर ये क्या है? गवर्नमेंट। ये क्या है? ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है और वीजेसी भी शॉर्ट फॉर्म है। यूएसए क्या है? एक्रोनिम। वीजेसी यूएसए एक्रोनिम्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं हैं, एब्रीविएशंस नहीं हैं। जब हम किसी नाम के इनिशियल्स लेके एक एब्रीविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं उसे एक्रोनिम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं कहते। एब्रीविएशन गवर्नमेंट है, एब्रीविएशन ये है, एब्रीविएशन वीजेसी नहीं है। यूएसए वीजेसी एब्रीविएशन नहीं है, दे आर एक्रोनिम्स, they are acronyms. This is short form. And what all are other short forms? Give me example. Organization की ओर आज जी, ठीक है। हाँ हाँ भैया वहाँ पे प्लीज माइक दीजिएगा वीरू को। अच्छा चलो उनको दे दिया। एग्जाम्पल ईजी। एग्जाम्पल की ईजी या ईएक्स? एग्जाम्पल की ईजी होती है या ईएक्स होती है? EX। भाई एक चीज बोलो ना। ईजी एग्जाम्पल होता है? कौन है जो आज तक इसको करेक्ट करता आया है? मेरे को नहीं। एग्जाम्पल में जी आता कहाँ है ये बताना, स्पेलिंग बताओ एग्जाम्पल की। तो फिर जी कहाँ से आया? मन होता है, हाँ ऐड ऑन कर देते हैं। नो स्वीटी, हाँ बोलो। मैम नंबर का NO। नंबर का NO डॉट। और बिकॉज की बताना। BC। ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन बताओ। इंफॉर्मेशन का INFO। इंफॉर्मेशन का INFO नहीं पहले। अच्छा ठीक है, ये तो करेक्ट है। पहले मुझे थोड़ा, मैं बिकॉज पे रुक गई हूँ, अटक गई हूँ। हाँ ये दिल अटक गया है। तो मुझे ज़रा बताओ ये बिकॉज की है शॉर्ट फॉर्म? हाँ या ना? क्यों नहीं है? कौन है जो कह रहा नहीं है? क्या तुम व्हाट्सएप पे बिकॉज ऐसे ही नहीं लिखते हो? नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे तो एक तरीके से और लिखते हैं, मुझे पता है। ऐसे भी लिखते हैं ना, है ना? ऐसे लिखते हैं ना? नहीं लिखते हो? तो फिर बिकॉज के लिए सिर्फ बी लिख देते हो क्या आजकल? BCZ भी लिखते हैं ना, BCZ। तो और भी कोई है? बेटा ये तो व्हाट्सएप एब्रीविएशन है, व्हाट्सएप एब्रीविएशन नहीं लिखनी है यहाँ पे प्लीज, नॉट अलाउड। जो यूनिवर्सली नोन एब्रीविएशंस हैं वो, डोंट गिव मी स्लैंग्स कि वो भी तो यूनिवर्सली नोन है, वो नहीं बात कर रही हूँ। फॉर्मली, formal universal abbreviations. Private limited, exactly. डॉक्टर का DR, डेबिट का भी DR, डेबिट DR, ऐसे या ऐसे? तुम्हें लग रहा है कि पैसेज में तुम्हें भी, मतलब वहां भी तुमसे यही सब पूछा जाएगा, डेबिट, हाँ डेबिट क्रेडिट वहां भी करते रहोगे? डॉक्टर का DR अगर हम लिखेंगे, सो इट्स अ टर्म ऑफ सैल्यूटेशन दैट वी गिव, लाइक मिस्टर, मिस,
ये एब्रीविएशन में काउंट नहीं होती है। DR लिख के सोचो वाह एक एब्रीविएशन, चलो नीचे लिख देते हैं। डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस नहीं काउंट होगा। इंस्टीट्यूशन क्या है इसकी एब्रीविएशन? और मैम एक्सेट्रा का ETC होता है क्या? नहीं बेटा, क्योंकि वो लिखते ही एक्सेट्रा है। मैंने तो कभी भी नहीं लिखा एक्सेट्रा को ऐसे ऐसे करके पूरा। हाँ यस लक्ष्य, ओ सॉरी यस अर्चित। कौन है ये इंडिया का IN? मैम हाँ हाँ मैम इनकॉर्पोरेशन का INC होता है। इनकॉर्पोरेशन का, इंक्लूसिव का भी तो INC होता है। सी यूनिवर्सली नोन कुछ एब्रीविएशंस ऐसी हैं, भैया इधर माइक दीजिएगा, कि कई बार वो दो वर्ड्स के लिए सेम होती है, तो विच एवर वर्ड इज देयर आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बट अगर पैसेज में ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल दोनों वर्ड्स हैं और तुम्हें दोनों ही नोट्स में यूज करने पड़ रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम एब्रीविएशन नहीं चलेगी। ORG इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नहीं है वो। देन यू हैव टू डिवाइज वन ऑन योर ओन। L लगा दो उसमें ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल। हाँ यस मैम लिमिटेड का LTD। हाँ वो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, कंपनी का CEO। अच्छा एंड एब्रीविएशन है ये वाला जो साइन होता है एंड, हाँ ये वाला सिम। मैम टेलीविजन का TV। हाँ टेलीविजन का TV। मैम एसोसिएट्स का ASS। एसोसिएट्स का ASS। एडवर्टीजमेंट ADV। पैराग्राफ का पैरा, हाँ। मोशन का प्रोमो, ठीक है। ईयर्स का YRS, ठीक है। हाँ एंड नहीं बताया लास्ट में, एंड नहीं बताया तुम लोगों ने, है या नहीं? सिंबल है। मैम एडवोकेट का ADV। एडवोकेट का ADV, एडवर्टीजमेंट एंड एडवोकेट दोनों यही है। अच्छा एंड यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा एंड यूजुअली कंसिडर नहीं होता है, बट लिख देते हैं और चलाने वाले चला लेते हैं। बट एंड को मत की लेके चलो कि एंड लिख दिया तो एक एब्रीविएशन हो गई, वो मत लेके चलो। अब ये जरूरी नहीं है कि पैसेज में हमें वही वर्ड्स मिलेंगे जो मतलब यूनिवर्सली हमारे पास उनकी एब्रीविएशंस हैं, तो हो सकता है हमें एब्रीविएशंस ना मिले, बट द रूल इज वी हैव टू यूज एटलीस्ट मिनिमम 6 एब्रीविएशंस, 6 डिफरेंट एब्रीविएशंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे उस केस में? एब्रीविएशंस बनानी पड़ेंगी ना। तो क्या करेंगे, एब्रीविएशंस बनाएंगे कैसे? एब्रीविएशंस बनाने के लिए omit the vowels। एक वर्ड में से वॉवल्स को हटा दो, बचे सारे कॉन्सोनेंट्स, आ गई हमारी एब्रीविएशन। इसमें प्रॉपर नाउन की एब्रीविएशन किसी का नाम है, उस बेचारे को एब्रीविएट ना करें, ठीक है। उसके इस बेचारे को एब्रीविएट ना करें। प्लस जो वर्ड्स ऑलरेडी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको भी ना करें। एडवांसमेंट, वैसे एडवांस का तो ADV होता है, वो पहले से चलेगा, तुम एडवांस लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें फ्रेशली ऐसा कोई वर्ड है जिसकी बनानी पड़ रही है, प्लीज डू नॉट डू दैट। Why do we omit the vowels? इसके पीछे भी रूल है। The rule says when we are abbreviating a word on our own, मतलब एक नए वर्ड से हम जब शुरू कर रहे हैं, then sound of the word should not be lost. So तुम खुद देखोगे कि जब तुम vowels हटाते हो तो sound नहीं जाती है। When I'm reading the consonant, I can make that out that which word is it.
जैसे कॉन्सोनेंट ही ले लेते हैं, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग ये होती है, मैंने एक एन और हटा दिया, मैंने इसमें से सिर्फ वॉवल्स हटाए हैं, देखो वॉवल्स हटाए हैं। द साउंड ऑफ द वर्ड शुड नॉट बी लॉस्ट, ये बेसिक रूल है। एंड मिनिमम ऑफ 6 आपको यूज करनी पड़ेगी। एक चीज ये मत करना, मेरे पास 1-2 आंसर्स ऐसे आए थे जिसमें हर वर्ड एब्रीविएटेड था, मतलब सिर्फ एक टाइटल था बेचारा जो नहीं था, सब हेडिंग, नोट, सब पॉइंट्स। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया है, फिर मुझे लगा ये तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने समरी जाके पढ़ी कि अच्छा चलो समरी से मैं कुछ रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। समरी में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो नोट्स में नहीं थी। एंड एक बात और याद रखना, इफ योर नोट्स आर रॉन्ग नथिंग एल्स इज इवैल्यूएटेड, योर समरी गोज रॉन्ग देयर। नोट्स रॉन्ग है तो समरी ऑटोमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि नोट्स से ही तो समरी बनाई है। तो जब नोट्स ही रॉन्ग है तो समरी तो इवेंचुअली रॉन्ग है ही। सिर्फ टाइटल के 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर खाली टाइटल लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंटेंट के बिना टाइटल का कोई मतलब नहीं है। दिखने में थोड़ी सी, सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, इट विल बी योर्स, समझ में आ जाएगा। Why am I not seeing smiles on the faces? ये तो स्मर्क था। ये तो नहीं चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ भी जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सब हेडिंग्स में एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है। एब्रीविएशन सिर्फ नोट्स में और सब पॉइंट्स में, सब नोट्स में यूज होगी। सो ये बेसिक था इसके बारे में। एंड रेस्ट वील कंटिन्यू विद नोट मेकिंग ओनली टुमारो। यस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय।